आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है प्राणादानम एंड ऑफरिंग ऑफ लाइफ। तो चलिए देखते हैं वीडियो देखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ओके Prandanam, I think, is very good opportunity for everyone to experience the entire circle as a whole. You know, all the activities. There is so much that goes on behind the scenes, right? One thing that you do every day in your life is having food. The way you eat food, the way you consume food, if that itself changes, your entire life is being changed in a way. That's the magic it has. और हम ये नहीं करते। Volunteering for Pranadhanam has taught me, like, you don't need to put brakes on your inclusivity. When you really see this whole process happen right in front of your eyes and you're a part of it, you definitely eat food in a different way. मतलब सेवा है। हाँ, It's not easy every day. Your mind will play with you. Your mind will ask you questions that you may not have answers to. But experientially, you will have an answer to it. I just see the world in a much different way now. You have to go through this experientially to really see what it's about. There are two parts to the program. The first part is where you come to Bhiksha Hall, which is where food is served. You help set up, you help serve, and then you help wind up. This for 4 days is one set of the program. ओके दीक्षा हॉल। This whole setup experience was my first time ever. Everything was done in such a way where it was like Sadhguru had put his whole being into it. Just the seating plan and just how the mat should be and how the plate should be. We are all engaged in some activity, you know, either putting the plates or, you know, lining up the tumblers, something or the other. And then suddenly the time ticks and it's time for the doors to open. Everyone just stops whatever they're doing and welcomes whoever is coming in with their hands joined, with a namaskaram. It's such a beautiful moment when people come in and the first thing they do is they bow their head and they walk in with namaskar. It touches you in such a profound way. We start with the invocation once the chant stops. Everybody chants at the same time with the same reverberation. And it's something to be heard. It's something to be seen. It's very powerful and it's very wonderful. It's said the way you serve food, the food takes that energies. So if you're serving in a stressful situation, for example, the stress is you passing on the stress into the food, and someone is consuming that food. That changed the way I served food. Every plate that I serve is an individual experience. It creates this connection to the person that you're serving. Everything is meticulous. So there is one activity and you do it hundreds of times. And doing something hundreds of times, you could see that as boredom. But it could also become extremely therapeutic and almost meditative, right? When you're just truly throwing yourself into an activity without resistances, something happens. So I was like, is this my sadhana working? Is this the food I've been eating for 3 days? Because this is not how I know me. I do get tired. Where is this extra energy coming from? A lot of limitation or a lot of resistance were broken in the process of Prandanam.
The things that I thought I can't do or I would never like doing, I was enjoying the activity so much. Another schedule would be starting at 5:30 with Guru Puja here at Akshaya. Akshaya is the place where the food gets prepared. Cutting vegetables standing for 2 hours is not easy at all. Thousands of people come to eat. It's so amazing to know every single day for each meal the food is prepared well in time. And it's not like they've prepared and kept it and stored. For each meal it's freshly cooked. It's really amazing to see what kind of efforts they are taking to make this happen really. There was never a day where the food came out late to a Bhiksha hall or the food was served late in Bhiksha hall. कितना अच्छा लग रहा था प्राणदानम 5 Pranadhanam is not something that's 10 days long. Pranadhanam is just offering of life, and that can be done for the rest of your life. You can walk around as an offering to everything around you, inanimate or animate. It's just so overwhelming to see people thank you for the food you served to them. You didn't pay for this food. You didn't make this food. You're just serving this food. And they're saying thank you to you for putting that food on their plate. In inner engineering, they say like be the mother to the world, and this was all theoretical in my head. But when you're doing Prandanam, you're living that each and every moment. You can't serve just like a robot to everyone. That sense of motherly feeling will come in you while you're doing that service. भाई हम ज़िंदगी में ना बाकी बहुत सारे जो है ना वो काम करते हैं, हर टाइम जो है ना लगभग जो है ना वो काम करते रहते हैं, और इस चीज़ में ना हम बहुत सारी चीज़ें जो है भूल जाते हैं। और मुझे एक चीज़ जो है वो रियलाइज़ होती है कि भाई सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना आपको यानी दिली सुकून आपको तब मिलता है जब आप किसी को खाना खिलाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि भाई आप किसी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल प्लेस से खाना खिला रहे हैं जहाँ पे आप खुद भी खड़े होकर खा रहे हैं, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन आप अगले बंदे को खिला रहे हैं और खाना खा के अगले बंदे का दिल जो है वो खुश हो रहा है, उसका पेट भर रहा है, तो भाई आपको जो है ना ऑटोमेटिकली सुकून मिलेगा। बिल्कुल। और आई थिंक ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पर्सनली मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि खाना एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए बहुत वैल्यू रखता है, स्पेशली उन लोगों के लिए यार नहीं, सबके लिए वैल्यू रखता है। एक होता है आपकी अप्रोच में वो चीज़ें होना, एक होता है आपकी एक्सेस में वो चीज़ें नहीं आती, और जब आप खाना खिलाएं, किसी को भी खिलाएं, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। बट मैंने ज़्यादातर ये लोगों में देखा है ना कि हमारी सोसाइटी में ये होता है ना कि जो ज़्यादा अच्छी फैमिलीज़ लाइक फाइनेंशियल फैमिली, उनके लिए बहुत अच्छे से हम लोगों ने इंतज़ाम करना होता है अपना एक शो ऑफ करने के लिए। बट जो लोग बहुत आप कह लो कि वाकई में डिजर्व करते हैं, उनके लिए हम लोग अपना हाथ थोड़ा तंग कर लेते हैं, ये हकीकत है। लेकिन ये अगर हम लोग बात करें प्राणादानम या प्राणदानम की बात हम करें, तो इसमें जैसे फूड ऑफर किया जाता है, इट्स लाइक कि आप एज अ वॉलंटियर वहाँ पर जाकर काम करते हो कुछ दिन के लिए, मतलब 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। लेकिन उन दिनों में जो आपको एक आनंद आता होगा, मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मतलब सोच के ज़रूर अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ईशा फाउंडेशन विज़िट नहीं किया, बट मुझे हमेशा ईशा फाउंडेशन जब भी हम लोगों ने कोई भी वीडियो देखी है, चाहे हमने सदगुरु की वीडियो देखी है, चाहे हम लोगों ने महाशिवरात्रि देखी है, या हमने ईशा फाउंडेशन का किचन देखा है, तो आपको एक वहाँ की जो एनर्जी है वो आप उस वीडियो के माध्यम से फील कर पाते हैं। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट जो लगता है ना, हमेशा से ईशा फाउंडेशन के किचन की जितनी भी हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं, साफ़ सुथराई, इतना हाइजीन आपको और इतना ऑर्गेनाइज्ड नज़र आता है
कि मतलब देखकर आपकी रूह जो है ना वो खुश हो जाती है कि हम इस जगह पर काम करेंगे। इवन कि बहुत ज़्यादा मशीन्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको ऑपरेट करने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से अगर हम देखें सुबह 5:30 बजे उठकर मतलब आरती होती है, फिर उसके बाद जो है वो लोग किचन में चले जाते हैं, तो मैं ये बात कहूँगी कि ये एक प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करना और ये सब चीज़ें करना, आई एम श्योर ये आपको बहुत आनंद देती है। यार देखे ना, जैसे एंड पे वो कहती हैं कि भाई रोबोट लाइफ जैसी जो फील नहीं आती यहाँ पर आके, तो मेरा ख्याल है कि हर इंसान जो है ना आजकल के टाइम पे रोबोट जो है वो बना हुआ है। वो सिर्फ आपके लिए घर, पैसा, नौकरी, घर, पैसा, नौकरी, जिम्मेदारियाँ है ना, इन चीज़ों में ही अटका हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल कर जो है वो जाते हैं, एक अलग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको जो है ना सुकून मिलता है। आप कहीं ना कहीं मेंटली पीस में जो है ना वो आते हैं। आप जैसे बीच में उन्होंने कहा कि आप जब भी कोई काम करते हैं, जैसे रोटी बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप स्ट्रेस में, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ वाकई उस चीज़ में जो है ट्रांसफ़र होती है। आपकी एनर्जीज जो होती है ना वो होती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। अगर आपके एक दोस्त का मूड खराब है, दूसरे का ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है ना कि हम इंटरनली बहुत वीक होते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का हमारे ऊपर इतनी जल्दी असर होना शुरू हो जाता है। बट अगर एक खाने की बात बोलूँ तो इसको मैं एक बात हमेशा ये समझाती हूँ, इसको पता भी चल गई होगी कि मैं क्या बात समझाती हूँ। अब वीडियो में तो इसने देख लिया, हो सकता है अब इसके बाद ये वो उस चीज़ का प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू हो जाए, बिकॉज ये चीज़ें मुझे पहले समझ में नहीं आती थी, बट अब आकर येस आई अंडरस्टैंड कि भाई आप कोई भी काम करो, कोई भी, सिर्फ खाने की बात नहीं, कोई भी काम करो, अगर आप उसमें जिस तरह की एनर्जी आप सर्व करोगे उसी तरीके की आपको मतलब उसका आउटपुट जो है नजर आएगा। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखी थी और उसमें ये तक बोला गया था कि अगर आप अच्छे मूड में नहीं हो और आप एक नेगेटिव जोन में हो तो आप खाना मत बनाओ किचन में जाके, क्योंकि जो खाना आप बनाओगे ना आपकी सारी वही एनर्जी उसमें जाएगी। सो समटाइम्स ऐसा होता भी है कि लाइक एक ही इंसान जो एक दिन बहुत अच्छा बहुत मज़े का खाना बना रहा होता है, दूसरे दिन वही खाना जो होता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता और उसने बनाया भी पहले वाले तरीके से होता है, बट हमें समझ नहीं आती कि भाई ये खाने में अब टेस्ट क्यों नहीं है। तो खाने में टेस्ट उस एनर्जी की वजह से नहीं होता, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। सो बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी कि उससे बेहतर होता है कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 दिन के लिए आप कहीं पर जाकर इस तरह से सेवा करते हो ना, वो बहुत अच्छी बात है। उसकी रीज़न ये कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि घर में हमें यही काम करते हुए ना बड़ा एक ना मुश्किल हो रही होती है, मूड ऑफ हो रहा होता है, हमने नहीं ये काम करना। लेकिन क्योंकि घर में हम लोगों का ना जो दिमाग है वो जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा बटा होता है कि हम कहीं पर जाकर कुछ दिनों के लिए जब सेवा करते हैं ना, ये मतलब जो मुझे समझ आ रही है उसी अकॉर्डिंग में बता रही हूँ, तो मुझे लगता है हम इतने फ्रेश होकर आते हैं कि हम लोग बल्कि घर के काम भी मुझे लगता है उसके बाद ना अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि आपका सोचने और समझने का नजरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। लेकिन मसला है ना, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी तो जिम्मेदारियों नहीं मौसम, ये टाइम तो आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा, आपको अपना लालच थोड़ा कम करना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ता है, लेकिन जो है ना मोस्टली हम लोग जो है ना जिम्मेदारियों से छुट्टी नहीं करते। बट एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि ना हमारे में ना एक और बड़ी प्रॉब्लम है, इंसान का लालच इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम लोग ना देखो जैसे भी खाने पीने का लालच ही हम कर लें, मतलब अब मैं रोज़ अगर सोचूंगी ना कि मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे अच्छा खाना खाना, लेकिन फिर मैं कहूँगी चलो एक दिन ये खा लेती हूँ, कल से शुरू कर लूँगी। और हम लोग ये नहीं सोचते कि हम जैसा खाना खाएंगे हम वैसे ही बनते जाएंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये चीज़ें इतनी लेट हम लोगों को समझ आ रही हैं, और समझ आने के बावजूद भी अभी तक हम लोग प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो मतलब इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, जितनी जल्दी हम समझ जाएं उतना बेहतर है हमारे लिए। बाकी मैं ये बोलूँगी कि ईशा फाउंडेशन के हमेशा से मतलब कोने कोने में मैं कहूँगी कि आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो नज़र आती है। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन ज़रूर हम लोग भी विजिट करेंगे, अब देखें कब मौका मिलता है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, और आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आपने कभी कुछ इस तरह एज अ वॉलंटियर काम किया हो तो कैसा फील होता है, या आपने अपनी लाइफ का इसको एक हिस्सा बनाया है, कब से बनाया है, कौन सा एक ऐसा इवेंट हुआ जहाँ से आपने ये सब सोचना शुरू किया, ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ चैनल करें, गुड बाय।